Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, the dollar index has resumed to the upside and it started to approach levels of 93 already. What do you make of this? Do you think there is a possibility it could go beyond 93 levels? See, first of all, I'd like to explain you what is going on. The markets are, this is very important. So whoever has joined or whoever is listening this webinar must understand what is going on. First of all, in our savings account, can you tell me what is the what is the rate of interest in FD, Hiral? Roughly Roughly, it ranges between 4 to 6. 4 to 6%. Okay. What if this rate of interest, which is right now 4%, 5%, okay, it starts fluctuating on every day to day basis by from 5% to 4.75%, from 4.75% to 5%, from 5% to 5.25%. What will be the state of mind of the investors? I'm just Yeah, there asking. will be confusion as to what is happening, why is this moving, Okay, so and here we are talking about US 10-year bond yields. Okay, the one of the most stable and fixed income instrument, which is going to, so the rate of interest. What is bond yield? So what is bond yields? The bond yields is that if you invest in US bonds, okay, the rate of interest. So for example, US 10-year bond yields are 1.29%. So if you invest money for 10 years, at the end of 10 years, you will get 1.29% return from the US government. So your correct. 100 rupees, if you are investing, that will come as 101 rupees point 29 paisa. Okay. So in that, we see the volatility of every day of 15-20 bips. So bond yield goes to 1.12, from 1.12 again 1.13. This is absolutely crazy. This is not something, this is not normal in fixed income market. Every day 20-30 bips plus minus, 20-30 bips plus minus, this kind of volatility in fixed income market. So here we have to trade very sharply. So I'm repeating in Hindi for all the audience who are in Hindi, listening in Hindi. ये जो बॉन्ड मार्केट का जो रेट है, यील्ड है, तो ये जनरली इसमें 2-5 पैसे का प्लस माइनस होना चाहिए. 15-20 पैसे का रोज का अप डाउन हो रहा है. आपको अगर समझ में आता है कि फिक्स इनकम एफडी का आपका जो रेट है वो 5% का सडनली 5.25% हो गया, 5.25% का सडनली 4.5% हो गया, 4.5% का सडनली 5.25% हो गया, तो ऐसा होगा तो आपको कैसा फील होगा? यू विल बी वेरी रैटल्ड. सो ये तो उससे भी 10 साल का यूएस का बॉन्ड है, ये तो उससे भी जबरदस्त लिक्विड और इंस्ट्रूमेंट है. तो इसमें तो ऐसी वॉलेटिलिटी में आपको बहुत स्मार्टली ट्रेड करना है. आपको पैनिक में नीचे में लेना है और ऊपर में प्रॉफिट बुक करके काम करना है और वेट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट द मार्केट वेयर थिंग्स आर गोइंग टू रन अवे. ऐसा कुछ नहीं हो जाने वाला है कि सडनली ऑयल $90 हो जाएगा या सडनली ऑयल $60 है. एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड करेगा. सो हमको बहुत स्मार्टली ये मार्केट में डील करना है. फंडामेंटल्स हर एक कमोडिटी के तेजी या मंदी के जो है वो डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं करने हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेटल्स के फंडामेंटल बहुत तेजी के हैं, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपर समझो फॉर एग्जांपल 718 रुपए का लो था 2 दिन पहले. ओके, नाउ इट इज टुडे एट 744. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आज कॉपर बाय कर सकते हैं? द रीजन इज, द आंसर इज नो. 2 दिन में ऑलरेडी कॉपर में हमने परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 3.5-4% की अपसाइड देखी है, और रुपी टर्म में बात करेंगे तो कॉपर आज आपको 28 to 30 रुपीज कॉपर के प्राइस बढ़ गए. 715 का भाव था 2 दिन पहले. तो आज का आज बाय करना है? नहीं, आज बाय नहीं करना है. सो दिस इज द वे यू अप्रोच द मार्केट. Let the market correct and then you decide whether you have to buy or not. But you cannot just go on rampantly buying commodity. बस तेजी है, बस तेजी है. That's not the right way to approach. So dollar index 93 ऑलरेडी चल रहा है. वही रीजन से गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो नहीं पा रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो पहले 90-91 रहा करता था वो अभी इवन करेक्ट होके 92-75 हो रहा है, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है. सो अगर ये एक बार 93-30 हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा. सो मेरा ओपिनियन ऐसा है कि थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड
जो है वो आज के दिन में करना चाहिए। आज भी मुझे गोल्ड नीचे ही लग रहा है, 47,300 तक के लेवल्स गोल्ड दिखा सकता है। और जहां तक आप सिल्वर की बात करो तो मुझे सिल्वर लग रहा है नीचे में 66,800। सो बाय एट डिप्स की रणनीति, सॉरी सेल की रणनीति आज अपनानी चाहिए। Right. So Kunal, iske, with all of this, agar if you have to see crude right now, today's session crude prices have been trading weak. Uh, Again, we did see a rally above $70 per barrel in between. Do you think from here on there will be fresh concerns like COVID cases in Europe and other parts of the world that will keep oil prices under check? सी अगर आप देखेंगे क्रूड भी मंडे को रेट चल रहा था अराउंड 49.50, जब ओपेक ने कहा कि हम लोग 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हर मंथ। सो ऑयल के प्राइसेस दो दिन के अंदर 10% टूट गए, बट सडनली रिबाउंड हो गए। सो जो मैंने थियरी आपको स्टार्ट में समझाया, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दैट थियरी कि अभी ऑयल बढ़ रहा है वो ग्रोथ के कारण बढ़ रहा है। तो क्या अभी ऊपर में एकदम ऑयल आज बाई करना चाहिए? माय आंसर टू यू ऑल इज नो, डोंट एग्रेसिवली बाय इट, वेट फॉर अ डिप। डिप आता है तो आप बाई कर सकते हैं 5300 के आसपास, 5310 के आसपास ऑयल फिर से आप बाइंग पोजीशन रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देन वी विल रिव्यू अवर कॉल, बट राइट नाउ थोड़ा आज इंट्राडे में इवनिंग में ऑयल में भी आपको 30-40 रुपए की डाउन साइड देखने मिल सकती है। Right. Kunal, there's a question from Piyush. We have sell position on crude at 5,200. Should we hold for next week or not? पीयूष, इट डिपेंड्स ऑन यूएस बॉन्ड मार्केट टुडे। अगर यूएस की करेंसी डॉलर इंडेक्स 9320 के ऊपर नहीं जाता है और बॉन्ड यील्ड्स भी यहाँ पे स्टेबल रहती है, 1.25 1.20 के नीचे नहीं जाती है, तो हमको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, ऑयल के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा तेजी के इसलिए नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि हर महीने ओपेक नेशन द्वारा 4-4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। सो फिलहाल ऑयल की मार्केट डेफिसिट में चल रही है। सो वो डेफिसिट धीरे धीरे कम होने वाली है। सो मार्केट उसको प्राइसिंग करेगा। तो मुझे बहुत लंबी अपसाइड यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। मैक्सिमम यहाँ से आप अगर 54-50 तक के लेवल्स एक बार दिखा सकता है, उतना अगर आप एम टू एम लॉस देख सकते हो तो यू कैन स्टे शॉर्ट। आपको लग रहा है कि और यहाँ से और मुझे 70-80 रुपया बढ़ता है और मैं नहीं देख पाऊंगा, देन आई थिंक यू शुड एग्जिट। राइट। एंड कुणाल, आपने जैसे बेस मेटल्स के बारे में बोला, बट आज के तारीख में बेस मेटल्स पॉजिटिव में थे, स्पेशली कॉपर और निकल। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्रेशर में आ सकता है क्योंकि चाइना का सप्लाई 8% से राइज होने की एक्सपेक्टेशन है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? नहीं, इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज द लगार्ड, लास्ट में मूव होता है। तो एल्यूमिनियम तो आज मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा। आज मेरी फेवरेट पिक ही एल्यूमिनियम है। 197 पे आप बाय कीजिए, 199 200 के टारगेट्स के लिए। सब मेटल बढ़ गए, एल्यूमिनियम इतना नहीं बढ़ा है। सो एल्यूमिनियम में मेरी बाय कॉल है आज। और कॉपर और निकल जो हम लास्ट 2 दिन से बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो दोनों में थोड़ा आज ऊपर के लेवल्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कॉपर मुझे लग रहा है 746 747 बुक योर लॉन्ग्स। और शॉर्ट करना है तो 2-3 रुपए के 751 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। निकल में भी मेरा ऐसा ही व्यू बन रहा है, 1455 के आसपास मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, वहां से मैं फिर से शॉर्ट रिकमेंड करूंगा। सो आज मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल से बेस मेटल में फ्राइडे है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। ओके। और कुणाल, सिल्वर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि in spite of gold seeing some bit of pressure, there was a mild rally that did come in with regards to silver as well. नहीं, गोल्ड नीचे जाएगा तो सिल्वर का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सिल्वर भी मुझे नीचे लग रहा है, 66,800 700 के लेवल आज इवनिंग में आपको देखने मिल सकता है। और एग्री कमोडिटीज में कुछ है? आई थिंक इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज थोड़ा बहुत ऑयल के पीछे गुआर सीड बढ़ सकता है। सोइंग में थोड़ी डिले हो सकती है, यील्ड पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। तो गुआर सीड आपको 100-150 रुपए की अपसाइड दिखा सकता है। Right. All right, Kunal. Thank you for getting us that information. Thank you, participants, for joining as well. Have a lovely weekend. And I think, Kunal, एक question आ रहा है. Sir, your best pick for today. सी जनरली इंट्राडे ऐसा नहीं, पर मुझे आज माय
गट फीलिंग सेज मैं आज कॉपर है इन 745 में शॉर्ट करूंगा और 738 में मैं कवर करूंगा और 748.80 का जो हाई है उसका मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा. दैट्स माय बेस्ट पिक. Right. So best pick coming in on a selling on copper. Thank you so much, participants as well. Thank you, Kunal. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.